Hello children, this video is for class 6 subject English grammar. In this video we will learn about continuous tense, chapter number 14. What is continuous? The verb in a continuous tense indicates an ongoing or an incomplete action in the past, present or future. Continuous पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में किसी भी इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो भी काम किए जा रहे हैं वो भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो अधूरा है, उसमें कंटिन्यूटी है, वो काम को लगातार किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम कम्प्लीटिंग माई होमवर्क. इस सेंटेंस से हमें यह पता चल रहा है कि मैं होमवर्क कंप्लीट कर रही हूँ. होमवर्क हैज नॉट बीन कम्प्लीटेड एट. इसे अभी किया जा रहा है. ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस आर फॉर्म्ड विद अ हेल्पिंग वर्ब प्लस अ मेन वर्ब हैविंग एन आईएनजी फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, मुकेश वॉज स्पीकिंग cheerfully. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट, नंदू एंड संदीप are typing very fast. Present continuous tense. The plane will be flying on schedule. Future continuous tense. So first we will discuss about present continuous tense. The present continuous tense indicates an action that is going on at the time of speaking or writing. The present continuous tense indicates an action that is going on at the time of speaking or writing. वर्तमान समय में जो कार्य किए जा रहे हैं, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. So, it's a present continuous tense. The verb phrase in the present continuous tense is formed with is or am or are plus ing form of verb. Present continuous tense में helping verb is, am, are के साथ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज जंपिंग. वी आर प्लेइंग. आई एम राइटिंग. मेथड इज सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. For example, you are watching this video. You is subject. Are helping verb. WATCH watch. Watch is base verb. And here we added ing, watching. So, watching is ing form of main verb. And this video is object. Next, I am teaching you. Here I is subject, am helping verb, teaching ing form of main verb, you object. Next topic is past continuous tense. Past continuous tense. The past continuous tense indicates an action that was going on in the past. Past continuous tense भूतकाल में जिस कार्य को किया जा रहा था उसका बोध कराता है. The verb phrase in the past continuous tense is formed with subject plus helping verb was word plus ing form of main verb plus object
plus full stop. For example, she was speaking loudly. In this sentence, she is subject, was helping verb, speaking ing form of main verb, loudly object is full stop. Next, we were walking carefully. I was writing neatly. In the same way, we and I are subject, were was helping verb, walking and writing ing form of main verb. Read these sentences. I was walking in the garden. They were watching a movie. Abhi was talking to his mother. We were playing in the garden. So students, the words was walking, were watching, was talking and were playing are in the past continuous tense. ये सभी words जो हैं was walking, were watching, was talking and were playing सारे past continuous tense में हैं. They tell us about actions which are going on in the past. ये सारे वर्ड्स हमें क्या दर्शा रहे हैं कि जो एक्शंस हैं किए गए हैं वे सारे पास्ट टेंस को शो कर रहे हैं. मतलब ये सारे एक्शन पास्ट टेंस में भूतकाल में किए गए थे. लाइक आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में टहल रहा था. दे वर वॉचिंग अ मूवी, वे लोग मूवी देख रहे थे. अभी वॉज टॉकिंग टू हिज मदर, अभी अपनी माता जी से बात कर रहा था. एंड वी वर प्लेइंग इन द गार्डन, हम लोग बगीचे में खेल रहे थे. ये सभी पास्ट टेंस में पास्ट टेंस के एक्शन को दर्शा रहे हैं. फॉर्म ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे फॉर्म करते हैं? लेट्स सी. We use was or were plus ing form of the verb. We use was or were plus ing form of the verb. So with he, she, it and I or any singular subject we use was. He, she, it और I और कोई singular subject है उसके साथ हम was का use करते हैं. And with we, you, they and any plural subject. With we, you, they and any plural subject we use were. W-E-R-E. We, you, they और कोई plural subject है उसके साथ हम were का यूज करते हैं और उसके बाद जो मेन verb है उसमें ing ऐड करते हैं. I was walking in the garden. So in this sentence, was plus walking is ing form of the verb walk. And they were watching a movie. So were plus watching is ing form of the verb watch. The future continuous tense tells us about actions that will be in progress at a given point of time in the future. The future continuous tense tells us about actions that will be in progress at a given point of time in the future. Future continuous tense उन कार्यों के विषय में बताता है. Future continuous tense उन कार्यों के बारे में बोध कराता है जो भविष्य में निरंतर किए जा रहे होंगे. कंटिन्यूस टेंस में हम देखते हैं कि जो एक्शंस होते हैं, जो कार्य होते हैं, वे निरंतर उसे किया जा रहा होता है. वो कंटिन्यूटी शो करता है एक्शन में. वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में उन कार्यों के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि जिसे बताया जाता है कि ये फ्यूचर में ये निरंतर किए जा रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग. आई एम प्लेइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. आई एम प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है. इट मीन्स मैं खेल रहा हूँ. और इसे अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं तो इट विल बी आई विल बी प्लेइंग. आई विल बी प्लेइंग. तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है. इसमें आई के साथ क्या यूज हुआ है? आई विल बी.
आई के साथ यूज हुआ है विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इट मीन्स मैं खेल रहा होऊंगा। तो ये फ्यूचर में इसमें कंटिन्यूटी शो किया जा रहा है इस एक्शन में। नेक्स्ट, द ट्रेन विल बी अराइविंग एट 4:30 PM। द ट्रेन विल बी अराइविंग एट 4:30 PM। She will be inviting us to the party. She will be inviting us to the party. So in these sentences, the words will be arriving. In these sentences, the words will be arriving and will be inviting are in the future continuous tense. इन दोनों सेंटेंसेस में जो विल बी अराइविंग है और विल बी इनवाइटिंग है, ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। They tell us about actions that will be going on at a given point of time in the future. ये उन एक्शंस के बारे में बता रहे हैं जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू किए जा रहे होंगे। ये उन एक्शंस के बारे में बता रहे हैं जो कि फ्यूचर में, भविष्य काल में निरंतर किए जा रहे होंगे। Now let's see form of future continuous tense. How to form future continuous tense? So students, we write will be or shall be plus ing form of the verb. हम future continuous tense बनाते समय सब्जेक्ट के साथ will be और shall be का यूज करते हैं, देन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब में ing ऐड करते हैं। लाइक सब्जेक्ट प्लस will be or shall be plus ing form of the verb plus object। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन will be और shall be का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब में ing ऐड करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। We generally use shall with I and we। फ्यूचर टेंस में हम I और we के साथ जनरली क्या यूज करते हैं, shall, shall, शैल यूज करते हैं। तो अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्रेम करते हैं, हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, तो आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। लाइक आई शैल बी विजिटिंग द लाइब्रेरी इन द इवनिंग। आई शैल बी विजिटिंग द लाइब्रेरी इन द इवनिंग। So in this sentence we can see students, I is a subject, then shall be plus visiting, ing form of the verb visit। visiting क्या है, ing form of the verb visit। visit का ये ing form में, visit में हमने ing ऐड किया है। I shall be visiting the library in the evening। With all other pronouns and nouns we use will। With all other pronouns and nouns we use will। आई और वी को छोड़ करके और भी जो प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ और सभी नाउन्स के साथ हम फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ करते हैं। तो अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद अगर कोई जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन है या आई और वी के अलावा कोई प्रोनाउंस हैं तो उसके साथ हम विल भी यूज़ करेंगे प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। लाइक शी विल बी मीटिंग अस एट द पार्टी। She will be meeting us at the party। यहाँ पे she is a pronoun, she is a subject और ये pronoun है। she के साथ क्या यूज हुआ, will be प्लस meeting। meeting में क्या ऐड किया गया, ing। तो ये ing form of the verb meet है। meet का ये ing form of the verb है। So your homework is you have to complete these sentences with the present continuous forms of the verbs given in the brackets। ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दिए गए हैं उनका आपको यूज़ करके प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म्स में लिखने हैं। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज का यूज़ करेंगे, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज़ करेंगे। देन वर्ब जो दिए गए हैं उसका आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे।